In you do I take refuge. A Shiggaion of David, which he sang to the Lord concerning the words of Cush, a Benjaminite. Somebody please read that Psalm 1, 2, 3, 4, 5 verses. O Lord my God, in you do I take refuge. Save me from all my brothers and deliver me. Last like a lion they tear my soul, but rending it in peace with none to deliver. O Lord my God, if I have done this, if there is wrong in my hand, if I have repelled my friend with evil, or plundered my enemy without cause. Read this introduction now. The book of Psalms stands as one of the most cherished and influential portions of the Hebrew Bible and Christians Old Testament. Among its 150 poetic compositions, Psalm 7 emerges. So Psalm number 7. This also comes under the Psalm of David. Of course, if it is a Psalm of David, he is praying to God. He is expressing all his feelings, and here you will see a word Shiggaion, Shiggaion, which means it has a meaning of wandering, भटकते हुए, पता नहीं क्या है अंत, काइंड ऑफ सिचुएशन. बाइबल में है ये, सिर्फ में हेडिंग में कहाँ लिखा हुआ वर्ड? A Shiggaion of David. पढ़ा? Which means wandering. Yeah, read the Psalm. कहाँ तक पढ़ा तो शंभू, वहां से फिर शुरू करना. You will find one Selah there. If I have repelled my friend with evil, or plundered my enemy without cause, let the enemy cross my soul and overtake it, and let him tremble my life to the ground, and lay my glory in the dust. Let the enemy cross my soul and overtake it, and let him trample my life to the ground, and lay my glory in dust. Arise, O Lord, in your anger, lift yourself up against the fury of my enemies. Awake for me, you have appointed a judgment. Let the assembly for the peoples be gathered about you. Over it written on high. The Lord judge the peoples, judge me, O Lord, according to my righteousness, and according to the iniquity that is in me. Oh, let the evil of the wicked come to an end, and may you establish the righteous, who test the mind and heart. O righteous God, my soul is with God, who saved the upright in heart. God is righteous judge, and a God who kill in son every day. A man does not repeat, a God will wait his sword. So in the introduction part, a Shiggaion means wandering of David, which he sang to the Lord concerning the words of Cush, a Benjaminites. शायद हम कहाँ पे पढ़ा है, एक व्यक्ति, एक स्पाई आकर
दाऊद को, शाऊल की तरफ से एक व्यक्ति आकर दाऊद से कुछ बात बोला करके हम कहां पे पढ़ा है। रिगार्डिंग दिस फेलो देयर इज नो एविडेंस बट मे बी, दूसरा शमूएल अध्याय 16 क्या है कहानी? सेकंड शमूएल चैप्टर 16। David and Sheba. Somewhere. Why? Because there is no direct evidence who is this fellow and when this happened. When ये व्यक्ति आकर इनसे बातें किया, बाइबल में तो सबूत नहीं है, बट मे बी शाऊल के समय या अबशलोम के समय में दाऊद के विरोध बात करते हुए दाऊद मर जाएगा और उनका कोई रक्षा नहीं है करके ये व्यक्ति आकर बोला होगा। तब उन्होंने वांडरिंग मतलब पता नहीं अभी क्या होगा, ये समस्या कैसा बंद होगा या कंक्लूजन कैसे होगा पता नहीं। सो ही इज रोमिंग विदाउट एनी आंसर बिकॉज दिस फेलो कुश बेंजामिनाइट्स केम एंड टोल्ड हिम दे आर गोइंग टू किल यू और दे विल कैच यू एंड दे विल किल यू। ये सोच में भजन संहिता 7 पढ़ना, वहां और एक बात भी लिखा है शिग्योन, या ये शब्द का और एक मतलब भी आता है बहुत डरते हुए, क्या होगा पता नहीं, इन ए लाउड वॉइस, कांपते हुए, बिकॉज ऑफ हिज फियर, बिकॉज ऑफ हिज टेंशन, बहुत नाराज है, बहुत टेंशन में है। तब इस भजन संहिता प्रार्थना के रूप में उन्होंने परमेश्वर से बोला। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेंशन आने के समय हम ऐसा ऐसा करके इधर उधर घूमते घूमते कुछ बातें करते हैं ना, अरे क्या होगा पता नहीं, अभी वो आएगा, ये करेगा, वो करेगा, मतलब टेंशन में ऐसा वाला एक संदर्भ, बिकॉज he don't know what is going to happen and one spy came and told him something very negative, so he is very sad and he is very tense and he is roaming here and there maybe and he is wandering here and there and he is singing and he is praying to God, talking to God. Now you read the Psalm verse 7 verse 1. Oh Lord my God, in you do I take refuge. हिंदी, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। हे मेरा परमेश्वर मतलब हे करके शब्द हम कब यूज करता है? बहुत प्रार्थना सब कुछ करते ही घूम रहा है फिर भी सामने देखा कुछ नेगेटिव, हम बोलते हैं ओ गॉड, फिर भी ऐसा हुआ, बोलते हैं ना। वो एक्सप्रेशन समझने के लिए मैंने उदाहरण बोल रहा हूँ। तब दाऊद ने पहले से अगर मुसीबत में है तब किसी ने अगर और कुछ आग में और थोड़ा पेट्रोल डाल के बोला ये आकर तुझे, तब परमेश्वर से फिर बोलता है हे मेरा परमेश्वर, मैंने भरोसा कहाँ रखा था। और आगे बढ़िए। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सीख के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो और यदि मेरे हाथ, बस सो कॉन्टेक्स्ट क्या है समझ आया? इस भजन संगीता का समय में दाऊद का कॉन्टेक्स्ट क्या है? वी डोंट नो वेयर द एग्जैक्ट हिस्ट्री इज देयर। ये व्हेन आया कुछ बेन्यामीन कब आकर क्या बोला करके सबूत नहीं है। कहाँ पर दूसरे शमूएल में एक जगह है, किसी को याद है तो बाद में बताना। दाऊद जब भाग गया था शाऊल की तरफ से आया और अबशालोम की तरफ से आया, कोई आकर इनको कुछ बातें बताया। एक्सपाई बैकग्राउंड स्टडी, ऑथरशिप ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू डेविड। हबक्कुक 3:1 में भी ये शिग्योन करके शब्द को हम देख सकता है। हबक्कुक 3:1, हाँ ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम ही है। हबक्कुक 3:1 शिग्योनोत। वन मिनट, थोड़ा पॉज कर दो। इन हबक्कुक ऑल्सो, हबक्कुक परमेश्वर से एक प्रार्थना करता है पहले। How many of you remember the background story of हबक्कुक? क्या था हबक्कुक संदर्भ? सो बहुत बातें हो रहा है दुनिया पर, ये सब बातें क्यों हो रहा है, क्या है, अंत क्या है, कुछ पता नहीं। टेंशन में हबक्कुक ने परमेश्वर से बहुत सवाल पूछता है।
सेम सिचुएशन है इधर दाऊद का भी। अभी और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, बीच में किसी ने आकर क्या भी बोला तो खत्म, नेगेटिव। सो इसलिए इधर लिखा है द वर्ड शिगियोन ऑल्सो अपीयर्स इन हबकुक 3:1। द रेफरेंस टू कुश ए बेंजामिनाइट is an enigmatic, as there is no direct mention of such figure elsewhere in the biblical narrative. Regarding that Cush Benjaminite, there is no evidence in the Bible. Then some scholars suggest that the Cush may have been a supporter of Saul, David's predecessor or rival, who was from the tribe of Benjamin. Others propose that the name symbolic representing David's adversaries. ये कुश बेंजामिन के बारे में दो व्यूज है, एक साउल की तरफ से कोई आकर दाऊद को डराया, दूसरा दाऊद का परेशानी को समझाने के लिए इमेजरी को यूज किया। दाऊद का परेशानियों को समझाने के लिए एक रूपक यूज किया। बेंजामिनाइट बहुत गलती करते जीता था ये लोग, ये क्या बोलता है इनका हेzeकिया राजा का बेटा का नाम क्या था? मनेशे, बेंजामिन होगा, कुछ भी होगा। इन लोगों का पीछे का कहानी है, मुसीबतों को दिखाने के लिए इस नाम को यूज करते थे। मुसीबतों को दिखाने के लिए बोलते हैं ना, हम भी कुछ मुसीबतों का दिखाने के लिए कुछ जानवर का नाम, मेरा जिंदगी सुअर के समान हो गया करके, मतलब खतरा खतरा हो गया, मतलब तुलना करना, रूपक। ऐसा होगा नहीं तो इतिहास में ऐसा एक बात हुआ दाऊद के पास शाऊल की तरफ से या अबशालोम की तरफ से एक कुछ एक बेंजामिन कुछ बातें बोला, तुझको ये लोग मार। तब दाऊद ने जैसा हबकुक जैसा इधर उधर घूमते हुए परमेश्वर से पुकारते हुए प्रार्थना कर रहा है। कमिंग टू हिस्टोरिकल सेटिंग, बिहाइंड साम नंबर 7 द हिस्टरी इज अनसर्टेन। हमको पता नहीं है कौन सी संदर्भ में एग्जैक्ट ये हुआ, लेकिन संदर्भ क्या है हमको समझ आ गया। The Psalms content suggest a period of intense personal crisis for David, likely during his years conflict with Saul or his other enemies. साउल के साथ या उनके बाकी जो एनिमीज के साथ कुछ समस्या के बीच में ये कहानी, ये संदर्भ आता है। The language of persecution, false accusation, appeal for vindication aligns with episode of David's life when he was pursued and slandered by rivals। 1 Samuel chapter 18 से लेकर 26 के बीच में हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कुछ लोगों ने इनका विरोध झूठा कहानी भी गवाही बोला। ये बात पकड़ कर देखा तो 1 शमूएल अध्याय 18 का 25 के बीच में ही आता है, क्योंकि उन्होंने गलती नहीं किया, वो गलतियों भी किया करके लोग उनकी विरोध बातें किया। सो द कॉन्टेक्स्ट कम्स इन 1 Samuel chapter 18 to 26। The Psalms plea for justice, protestation of innocence। उन्होंने ऐसा प्रार्थना कर रहा है, हाँ गलती हुआ फिर भी कुछ बातें मैंने नहीं किया, परमेश्वर मुझे माफी करना और इन लोगों का हाथों से बचाना। समझ आया? लिटरेरी स्ट्रक्चर, इन्वोकेशन एंड प्ली फॉर डिलीवरेंस 1 to 2, प्रोटेस्टेशन ऑफ इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूं करके परमेश्वर से बता रहा है 3 to 5, पेटिशन फॉर डिवाइन जजमेंट, परमेश्वर आप इसका ऊपर, इस विषय के ऊपर न्याय करना। अफर्मेशन ऑफ गॉड जस्टिस, ये भी बोल रहा है 10 to 13 में परमेश्वर न्याय करेगा। कैसे करेगा? पढ़ के देखिए 10 से लेकर वर्ष 11 में लिखा है ही इज अ राइचस जज। सो इन ऑल थ्रू दिस psalm one word is again and again repeatedly coming. What is that word? Righteous. Description of the fate of the wicked, जैसा भजन संगीत 1 में बताया विकट लोगों का विधि और उनका जीवन कैसे होगा, इधर भी बताया है 14, 15, 16। कन्फेशन ऑफ प्राइस, अंत में उन्होंने बोल रहा है परमेश्वर को मैंने धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर को स्तुति करूंगा करके बोलते हुए इस भजन संगीता को समाप्त किया। मतलब पूरा का पूरा इमोशन, फीलिंग, सब बातों को बताया। अंत में ये भी बोला लेकिन मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। समझ आया?
So the psalmist is an individual who understood God very 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 deeply. That's why दाऊद को और एक नाम भी मिला, क्या है? परमेश्वर का दिल की पास जीने वाला एक व्यक्ति, इसलिए ये गुस्सा भी करता है, प्रार्थना भी करता है, सब कुछ करता है। थियोलॉजिकल थीम, दिस साम इज ए लैमन, ये विलाप भी है। दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन जस्टिस। दिस शोज रोल ऑफ द एनिमीज एंड एक्यूजेशन। शत्रु लोग या हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को गिराने के लिए शत्रु कैसा हमारा विरोध आरोप लगाएगा, ये बात भी इस भजन संहिता में बताया, मतलब झूठा बातों को भी बताएगा। देन एक्सेजेसिस का जरूरत नहीं है, ऊपर दिए हुए बातों का वो डिवीजन हुआ था, ऊपर वही नीचे एक्सेजेसिस किया हुआ है। थियोलॉजिकल थीम्स, डिवाइन जस्टिस एंड ह्यूमन इंटीग्रिटी, परमेश्वर का न्याय और इंसान का इंटीग्रिटी का हिंदी क्या है? मतलब मैं इतना ही हूं करके दिखाना, ये गलती है, मैं इतना ही हूं करके परमेश्वर से सीधा सीधा खोल के बता देना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का असाइनमेंट देखा तो आपका इंटीग्रिटी समझ आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, नियम मिला है इंटरनेट से कॉपी नहीं करना, वो लोग क्या करते हैं, कुछ तो कुछ उनको जो आता है वही बातें लिख के आएगा, मतलब मुझे इतना ही आता है, मैंने खुद मेहनत करके लिखा, वो इंटीग्रिटी बोलते हैं उसको। हमारे टीचर हमको सिखाते थे। बाकी लोग क्या करता है, इंटरनेट से कॉपी करके उसको छुपाने के लिए और कुछ आइडिया ढूंढकर लेके आकर ऐसा खड़ा होता है, मैंने खुद किया। समझ आया? देन द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ इविल, ऐसा कुछ मुसीबत के समय में इविल ने शैतान ने क्या करता है, हमारा मन के अंदर आकर बैठ के तू बेकार है, तुझसे नहीं होगा, वो लोग तुझे हराएगा, हाँ सच है, वो बोला था, वो तुझे मारने के लिए आएगा, वो आएगा तुझे मारेगा, ऐसे नेगेटिव सोच हमारा मन के अंदर देते रहता है। तब हम क्या करता है, ये तो शराब के पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो कान को देखना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन के पटरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि सब खत्म हो गया करके फीलिंग मन के अंदर दे देता है। दवा पी तो उसके भी पैसा चाहिए, कौन उतना मेहनत करेगा। Then in the end, the role of praise in lament, विलाप के बीच में कैसा धन्यवाद करना है करके भी इस भजन संगीत हमको सिखाता है। वो वहां तो दवा तो ऑलरेडी खेती में डालने के लिए खरीद के रखता है, जाना है पीना ही, उतना ही है। वो पीने के बाद अगर किसी ने नहीं देखा तो फिर नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन नहीं है, गया। देन लिटरेरी एंड पोएटिकल फीचर, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, कुछ इमेजरी को, रूपक को यूज किया, कुछ मेटाफोर का यूज किया। ये मेटाफोर क्या है समझने तो भजन संगीता 23 का नीचे जाकर देखना। मेटाफोर, an implied comparison that does not use the formula like or as, the Lord is my shepherd, मतलब इसकी समान है, लाइक आज करके नहीं बताता है, सीधा बताया लॉर्ड इज माई शेपर्ड, मतलब मेटाफर है, परमेश्वर को चरवाहा के समान दिखाया, लेकिन चरवाहा का समान है करके नहीं बोला, वो क्या है करके बोला, स्थापित प्रस्तुत कर रहा, ही इज माई शेपर्ड। इसका मतलब ऐसा नहीं है यीशु मसीह बकरियों को चलाता करके, मतलब मेटाफर का मतलब वो है, समझ आया होगा, समझ आया होगा। देन स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट शुरू होता है एक पेटिशन से, परमेश्वर से कुछ बुलाकर बोल रहा है, मैंने भरोसा आप पर रखा था, फिर भी ये लोग फिर भी नेगेटिव बातें मैं सुन रहा हूं, वहां से शुरू होकर लेकिन मैंने मेरा परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा करके बोल के समाप्त किया। समझ आया? देयर इज अ फ्लो, बहुत ऊंचा आवाज में शुरू करके लास्ट में आकर फिर डिक्लेयर किया, कुछ भी हो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है मैं धन्यवाद करते ही रहूंगा। That's why people say David understood God very deeply. बट एक इंसान होने के नाते कभी कभी गुस्सा, नाराज, आवाज उठाना,
होता है, अंत कैसे होता है उनका, लेकिन साल्वेशन बिलोंग्स टू गॉड, मैंने उनको ही धन्यवाद। मतलब उन्होंने एक बात समझ लिया, ही अंडरस्टूड वन थिंग, व्हाट एवर हैपेंस माय गॉड नोस एवरीथिंग एंड सॉल्यूशन इज ओनली विद गॉड। मैं खुद कुछ भी नहीं, मैं एक ही बातें कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट, कन्फेशन, प्रेयर, आई विल प्रेज हिम। समझ आया इतना? आज रेलेवेंस क्या है? एड्रेसिंग इनजस्टिस एंड फॉल्स एक्यूजेशन। किसी ने आपका ऊपर गलत आरोप लगाया, गवाही बताया, परमेश्वर क्या करेगा करके इस भजन संगीता से हमको दाऊद ने समझाया। देन द रोल ऑफ लैमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन में विलाप का रोल क्या है, इस भजन संगीता हमको समझा दिया। देन द होप ऑफ डिवाइन जस्टिस, whatever happens, you might be wrong today, but if you confess, tomorrow God will judge according to his righteousness. So be sure that God is a righteous judge. Then some scholars also gave some contribution. For example, some scholars बोलने की जरूरत नहीं है, भजन संगीता पढ़ा तो हमको समझ आ गया। ये दाऊद का एक पर्सनल बात है, उन्होंने बता रहा है, क्योंकि ये देश को कुछ नहीं हुआ, दिस इज समथिंग दैट फॉर हिज दैट हैपन इन हिज पर्सनल लाइफ। माइकल खड़ा हो जाओ। दैट हैपन इन हिज पर्सनल लाइफ। ये नेशन के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, उन्होंने खुद के लिए बोल रहा है। स्कॉलर बोलने से पहले हमको भी समझ सकता, क्योंकि आइडिया मैंने बताया, यूजिंग वर्ड आई, मी, माई, दैट शोज दिस इज समथिंग पर्सनल टू द सामिस्ट। थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, in a theological way, those who reject suffering, you can speak to them. Even if you reject suffering, it will not go away, it will be in your life. Why? Because that is part of our life. कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे बहुत खुशी का जीवन ही चाहिए, उनको बोल देना भाई नहीं होगा, नहीं होगा। कभी कभी हम खुद मुसीबतों को लेके आता है, कभी कभी परमेश्वर देता है, कभी कभी शैतान परमेश्वर को परमिशन मांग के भी। तीनों तरफ से कौन सहना पड़ेगा? हम ही है। इसका अंदर मेटाफर को यूज किया है, पैरेललिज्म को यूज किया है, ये है इसका स्ट्रक्चर। वो कैनोनिकल अप्रोच है, मतलब इसका अंदर से और थोड़ा बातें समझना है तो मेटाफर करके अभी मैंने बताया। इधर परमेश्वर को किसकी समान मेटाफर में यूज किया? साथ पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट वचन में भी यूज किया। ही इज माई परस्यूअर, ही इज माई डिलीवरर, ही इज माई रिफ्यूज, ही इज देन ही ऑल्सो यूज द मेटाफोर ऑफ लायन टू शो हिज एनिमीज। एनिमीज को दिखाकर बोला किसकी समान है? एक शेर की समान, मुझे क्या करने आ रहा है। So that is metaphor. Conclusion, ऊपर दिए हुए सारे बातों को जोड़ते हुए conclusion. So any doubt from Psalm number 7? इधर तो लिखा है वो they like a lion, they tear my soul.